Hello and welcome everybody students. Today we are going to discuss the remaining part of innate immunity which comes under immunology. Okay, in immunology we have studied or known two types of immunity. One is your innate immunity and another one is acquired immunity. Again, innate immunity, remember, innate immunity was four types mainly. And what are those types of innate immunity? Number one was your physical barriers. Innate immunity mainly divided into four barriers. One is physical barrier or anatomical barrier. Another one was physiological barrier. Okay. Another one is your third one is cellular barrier but phagocytic barrier, and fourth one is your inflammatory barrier. So these are four types of innate immunity. Again, acquired immunity is also of two types. One is active immunity and another is passive immunity. Again, active immunity is divided into two types. One is cell mediated immunity and another one is antibody or humoral mediated immunity. And passive immunity is vaccine. I have already discussed it in previous classes. So among innate immunity or types of barrier which comes under innate immunity, we have studied already first barrier, that is physical barrier. Okay, so innate immunity रे कौन कौन आसुतला हमरो innate immunity रे ना first आसीतला physical barrier, second रे आसीला physiological barrier, third one is cellular or phagocytic barrier. So last is सब barrier, and last one is inflammatory barrier. Okay, so innate immunity consists of these four types of barriers. Among these four types, the first two types of barrier are known as first line of defense. What? First line of defense. LOD मतलब line of defense. First line ये प्रथम रहिबे दौरानिक. And second and third one and fourth one, these comprisively form second line of defense. If these two combinedly form second line of defense. LOD मतलब line of defense. So we have already discussed about physical barrier. Now today we will discuss about other three barriers. So first, physiological barrier. This physiological barrier, as its name suggests, it means it is related with our physiological activity or physical process. Okay. So whichever factor is related to our physiological process, like you may say pH is a factor. pH can be a factor which will affect our physiological biochemical functional aspect of our body. Another one may be your temperature. Another one is your pH, sweat, bile, oil. So these are the factors which affect the physical activity, physical process of our body. So if these factors can be able to protect our body in some extent, then that also will come under innate immunity. And as it protects in our physiological activity or at our functional level, physiological level, so it will be known as physiological barrier. समझ में आ रहा है ना बेटा? जो हमारा रहिला pH रहिला, temperature रहिला,
लाइसोजाइम आम बॉडी भितर रहिला, स्वेट रहिले, ऑयल रहिले, बाइल सिक्रेशन होची। तो एडा सब हम बॉडी भितर छुआ होची। बॉडी भितर फंक्शन को से माने एक्टिव हमर बॉडी भितर जो फंक्शन होची ताकू तो कंट्रोल करूछंती। ता सहित एमान कोन करंती ना आम बॉडी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस रूप में प्रोटेक्ट भी करंती। कारण ये जो सब जिनसटा तो मुझे कहली गोटे गोटे पीएच हो, टेम्परेचर हो, स्वेट हो, सलाइवा हो कि एंजाइम डिफरेंट हो, तो एमाने कोन एमानकर गोटे एंटी बैक्टीरिया बा एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटी वायरल प्रॉपर्टी अछि। एमाने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सहित एमान माने लड़ाई करिवार फाइट करिवार एमान पाखरे क्षमता थाए। और जेहेतु ए सब फैक्टर गुड़ा मध्य फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सहित आमर रिलेटेड अछंती, ता सहित हम बॉडी को प्रोटेक्ट भी करूछंती। केमिति करूछंती हम देखिबा हला। तो सेति भाई ए जो बैरियर गुड़ा कहली वर्तमान से आमर सलाइवा हो, टेम्परेचर, पीएच ए माने कोन कहजिवो फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल वर्ड टाइम लागिछि बुझिबार तो, कारण एमाने हम बॉडी को तो प्रोटेक्ट करूछंती बैरियर हिसाब ता सहित हम बॉडी रो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी फिजियोलॉजी हां फंक्शन जो रहिला सेरा को भी से माने कंट्रोल करूछंती। हां पीएच कंट्रोल करूने हम बॉडी के, टेम्परेचर भी कंट्रोल करूछि। सो among physiological barrier we will study about or we will know how they protect our body and which are those factors. Mainly these are pH, temperature, है ना, and sweat and oil। चार रहेला तुम्हारा लाइसोजाइम। ओके देखो जाना नहीं छा लाइसोजाइम, आउ गरे रहेला तुम्हारा बाइल। So all these factors protect our body from the outer microorganisms, or you might say bacteria, it may be virus or any pathogen. Okay, so how pH control our body, how pH control our body, that you also know about it। pH आम बॉडी रे केमिति कंट्रोल करूची, डाइजेशन ले केमिति एसिडिक pH रे हेल्प करूची, केमिति कोडा बेसिक pH रे को जिनछड़ा डाइजेशन होची, एडा सब ब्लड रे pH जो कोन असुविधा होची कोन सुविधा होची, एडा सब तमे pH फैक्टर पर जानि छ ऑलरेडी। सो प्रोटेक्ट हम फिजिकल बैरियर रे pH केमिति काम करूची ना देखो छ हमर गोटे एग्जांपल दउची तुम बुझी जिवारा। आमे हम बॉडी भीतर जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन होची एटा होची हाईली एसिडिक। हम कहली जो pH कथा हमें पढुछन है pH कथा बॉडी रे जो गैस्ट्रिक जूस रहिला, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होची है। गैस्ट्रिक जूस ता कोन एसिडिक है ना, एटा एसिडिक इन नेचर, हाई माने वेरी लो pH, यार pH 3 to 5 अति जीरो हाली होबो, सेति बे एटा बहुत एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक नेचर रे कोनोसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करि परिबे नाही बा समानकर डेथ हो जाय। आमे जदी भी कोनोसी बाहर फूड खाउचंदी, इफ वी हैव एवर टेकन द फूड्स फ्रॉम आउटसाइड or from roadside, then you there is a 100% 90% chance you are consuming bacteria or any pathogen along with the food। ओके जदी भी तुम बाहर खादो ता माने तुम हेटे भाबिनो 90% चांस अछि समय कोनोसी बैक्टीरिया बा कोनोसी पैथोजेन बा माइक्रोजेन तुम बॉडी भीतर 100% जिबे जेहेतु तुम रोड साइड रो खाउछो। तो सेति भाई तुम तो एनकवर कर देलो, ठोकी देलो, से गला कोठी जांगी तुम स्टोमक रे रहला। इन स्टोमक देयर इज हाईली एसिडिक medium because pH is very low in the stomach। HCl secretion also they are there। So in that acidic medium, in that pH very low, which is very low pH, there is zero possibility of surviving of any pathogen or any microorganism। कहीं भी माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एते कम pH रे सर्वाइव कर पारे नै। So pH protect our body from the microorganism। then तुम्हारा कोन आसना छ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कोन भाई हुए ना जदी हम बॉडी भीतर को कोनसी माने करो हला, माने करो हम बॉडी भीतर को कोन हला ना कोनसी गुडे पैथोजेन एंट्री कला। तो से पैथोजेन एंट्री कला पर कोन करियो ना पैथोजेन रो सब टॉक्सिक जो टॉक्सिन जोडा कहजंदी विषाक्त जिंस बा विषाक्त पदार्थ से कोन करे सेटा प्रोड्यूस करियो।
सो से टॉक्सिन टॉक्सिसिटी मटेरियल को टॉक्सिन मटेरियल को तार रेस्पॉन्स रे हम बॉडी रो थर कोनसी गुटे पैथोजन गला से को कला किछि प्रोटीन प्रोड्यूस कला जोटा कि टॉक्सिक बा कोनसी बैक्टीरिया आसला से प्रोटीन तयार कला जोटा कि हम बॉडी बाय टॉक्सिक आम बॉडी कौन चाहिए जेहेतु एटा गोटे बाहर जिनस गोटे फॉरेन जिनस गोटे एंटीजेन तो आम बॉडी ताको रिएक्ट करिया पई चाहिए हला तो से टॉक्सिन को बा टॉक्सिन एग्नेस्ट रे गोटे रिएक्ट करिया पई आम बॉडी रो कोन करे ना टेम्परेचर इंक्रीज हुए हला आम बॉडी रागी जीव हो ना नहीं बाहर गोटे जिनस आसी ताको न्यूट्रल करिया पई चाहिए केमिति न्यूट्रल करियो ना तो हठात कोन करबो से जगह रे से बॉडी रो टेम्परेचर को increase करियो so जो increase of temperature in your body happens what is the reason behind that increase of temperature because it our body is wanting to react against any antigen आम बॉडी रो ज्वर होची माने टेम्परेचर होची माने आम बॉडी की कोनसी वायरल फीवर हेची बा कोनसी वायरस आछि बा कोनसी पैथोजन आछि से टॉक्सिक रिलीज करछि आम बॉडी भितरे सो दैट ताकर प्रतिक्रिया रे तार ताकू रिएक्ट करिया पई ताकू काउंटर अटैक करिया पई आम बॉडी रो जो इम्यून सिस्टम हैला रहिला से कोन करे ना बॉडी रो टेम्परेचर को इंक्रीज करे जाय टू न्यूट्रलाइज और टू टैकल दैट टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन एंटीजन हला तो एथि बॉडी रो टेम्परेचर कोन पई इंक्रीज हुए वर्तमान जानि गलो व्हाई द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस टू न्यूट्रलाइज टू बैलेंस और टू काउंटरैक्ट द टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सम सर्टेन पैथोजन हला तो टेम्परेचर तो बढ़ी गला टेम्परेचर किंतु बढ़ी थिला एटा कोन भाई ना से टॉक्सिन की बा जो टॉक्सिक मटेरियल ताको न्यूट्रलाइज करिया भाई किंतु ए जो टेम्परेचर बढ़िला एटा इनडायरेक्टली कहा को प्रोहिबिट करियो ना बा कहा को रेजिस्ट करियो ना एंटीजेन को बा तम कहि परियो एनी पैथोजेन को केमिति ना जदि टेम्परेचर आपण गुटे जगह रे टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बढ़िला तो से टेम्परेचर हाई हैला माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने सर्वाइव करि पारे नै हमको कोरोना टाइम रो कहथले ना टेम्परेचर अधिका हले खरा दिन आसी गले कोरोना बंची परिबो नै कोन माइ कहथले कारण हाई टेम्परेचर रे मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करि पारंती नै तो ये जो टेम्परेचर बढ़ले ये टेम्परेचर किंतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बढ़ी नतला एटा बढ़ितला कोन पाइ ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म थारो जो प्रोड्यूस होतला विषाक्त पदार्थ ताकू काउंटर करिया पई टेम्परेचर बढ़ितला किंतु ये जो टेम्परेचर बढ़ी गला ये वर्तमान कोन करियो ना इट विल प्रोहिबिट इट विल रेजिस्ट द एंट्री ऑफ अदर पैथोजेंस और दैट पैथोजेन व्हिच मान दैट पैथोजेन मींस सेही पैथोजेन यदि आउ केही एंट्री करिया पई नो पैथोजेन एंट्री करिया पई चाहेबो ताले से बॉडी कोन करबो ताको रेजिस्ट करबो कारण टेम्परेचर हाई हेछि बॉडी वर्तमान रिएक्ट करछि बॉडी टेम्परेचर हाई हेछि that will prohibit the entry of other pathogens and that pathogen is another one wants to attack you. So temperature also helps in immunizing our body to protect our body. And then sweat and oil so sweat and oil you know secreted from respective gland. It means sweat is secreted from sweat gland, oil is secreted from oil gland. These are all antibacterial and antifungal in nature. Sweat and oil, these two are antibacterial, clear? Antibacterial and antifungal in nature. Clear? जो स्वेट रहिला ऑयल रहिला एमन एंटीबैक्टीरियल नेचर एमनकर भगवान हमको देछि एमिति गुडे माने भगवान ताको कोन सेमिति क्वालिटी देछि स्वेट आ ऑयल यदि तम बॉडी रे ठीक ठाक स्वेटिंग होतबो ऑयल भी किसी सिक्रेशन होतबो तो ताहले तम बॉडी रे कोनसी बैक्टीरिया माने मैक्सिमम देयर इज चांस ऑफ very less bacterial disease and fungal disease. If sweating and oil secretion is proper in your body, there is less chance of attacking of bacterial and fungal disease in your body. So sweat oil इमाने antibacterial बा bacterial को prohibit करन्ती body के entry करिया पाई बा body जदि भी केही आसिले तले grow करिया पाई समाने ताको देबे नै और antifungal in nature with fungus जिनते ringworm रहिला गोटे डिजीज तो से फंगल डिजीज भी ठीक ठाक हम प्रोटेक्ट करबे स्वेट ऑयल लाइसोजाइम यू नो लाइसोजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया सो इट इज एन antibacterial element or product in our body. Our body secrete lysozyme and it is also present in your saliva, in your respiratory
digestive tract, है ना, in tear also lysozyme are there. So in lysozyme is purely antibacterial in nature, antibacterial, है ना. I have already taught you. Lysozyme is used to break down the cell wall of bacteria, so it is an antibacterial in nature. Bacteria cannot grow in or cannot survive in presence of lysozyme. So lysozyme also protect our body. So these are second line of defense. Physiological, it is first line of defense. And another one is gastric. Bile is also a antibacterial and antimicroorganism product in our body. Bile also helps prohibit the growth of microorganisms in certain extent. So these are the physiological activity which is related with our body function and protecting our body, thus immunizing our body. Which and physical and physiological immunity, it both comprises the first line of defense. Now comes to second line of defense in our body. In second line of defense, there are also two types of barrier which comes under innate immunity also. So now we will discuss about cellular barrier. Okay, cellular barrier. It is also known as phagocytic barrier. Phagocytic barrier. Its name already told you what the function of this barrier. And phagocytic barriers means there should be some phagocytic cells. Okay, so there are some phagocytes. Cytes means cell. Phagocytes. For example, which type of phagocytes are there in this or comes under this cellular barrier? It includes mainly macrophages, monocyte, lymphocyte. Monocyte and neutrophils, I hope. एक मिनट रुको. Monocyte and neutrophil. Sorry. Okay, monocyte and neutrophils. So these three mainly responsible for phagocytic nature of our body or certain cells which protect our body as cellular barrier, which act as a cellular barrier. बुझिपाल ना ना ए तीन प्रकार सेल जो अछंती एमाने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रो पार्ट माने जदी ए दिरा लाइन को फर्स्ट लाइन दिरा बैरियर को क्रॉस करके आसीबा हम बॉडी भीतर कोनसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सफल हो गेला जदी ताको एंट्री करिबारे देन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव टू फेस cellular phagocytic barriers है ना. So who are in cellular phagocytic barrier? कौन मान अछंती मतलब phagocytic barrier? It mainly present here macrophages, monocytes and neutrophils. As its name suggests, these are phagocytic barriers, means it will directly engulf the pathogens. It may be bacteria, virus or any other microorganism. So all these three cells directly engulf the whole pathogen. So they engulf the pathogens directly and digest it. ସେମାନେ କଣ କରିବେ
से माने डायरेक्टली गुटे कोनोसी पैथोजन हम बॉडी भीतर को एंट्री गला फास्ट दीटा बैरियर को क्रॉस करके एंट्री करगला ये कोन करबो ता से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वर्तमान फागोसाइटिक सेल मानन सहित फाइट करते हबो हा तो तायतरी जो ए तीन फागोसाइट सेल माने कोन करबे ए मान को देखले बाहर कोनोसी पैथोजन आसी ए माने डायरेक्ट जिबे ताको डायरेक्ट एनगल्फ कर देबे माने ढुकी देबे ताको सेल गड़ा ताको भीतर को नहीं जिबे एनगल्फ कर देबे डायरेक्टली तो फागोसाइट्स माने कोन की फागोसाइट माने होजी सेल ईटिंग कोन बोलती सेल ईटिंग सेल ताको कोन करे खाई दिए एनगल्फ कर दिए ढुकी दिए है तो ढुकी देला पर कोन होबा ना ताकर डेथ हिजो कारण से जो सेल भितरे फागोसाइट जो रहिले से मानक भितरे कोन अछंती ना सब एंटीबैक्टीरियल एंजाइम फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम बडा एंजाइम ताको भितरे स्टोर हे करछंती हला से सेल मानक भितरे सो दैट आफ्टर एनगल्फिंग दैट pathogens the death of pathogen is definitely will be there because there are antibacterial and antifungal enzymes like antibacterial enzymes like lysozyme are there which will digest their cell wall and cell membrane and finally the pathogen will die inside that phagocyte by phagocytic cells. So macrophage manifest neutrophil. These monocyte and neutrophils comes under WBC. They comes under WBC. Leukocyte. Okay. WBC मतलब leukocyte. RBC मतलब एरिथ्रोसाइट. तो ये श्वेत रक्त कणिका भितर थाती मोनोसाइट न्यूट्रोफिल है ना नहीं ग्रानुलोसाइट भितर मान ग्रानुलोसाइट भितर आसी जो न्यूट्रोफिल मोनोसाइट आसी जो ग्रानुलोसाइट भितर अब मैक्रोफेजेस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मोनोसाइट अला जो मैक्रोफेज देखु जो लिखा है मैक्रोफेज था कोन ना मोनोसाइट जोटा कि गुटे WBC जोटा कि गुटे एग्रानुलोसाइट WBC रो एग्रानुलोसाइट तो से मोनोसाइट रो मॉडिफिकेशन है कि कोन हिता है मैक्रोफेजेस हिता है सो ऑल दीज आर कम्स अंडर WBC किंतु स्पेसिफिकली मैक्रोफेजेस डजंट कम्स अंडर नॉर्मली बिकॉज़ मोनोसाइट्स गेट converted or modified into macrophages. So all these three are helped in protecting our physiological activity or physiological barrier. Act as physiological barrier. Physiological means cellular barrier. After crossing first line of defense, you have the microorganisms have to face the second line of defense, and from among second line of defense, the first barrier, that microorganism will face up with cellular or phagocytic barrier. And now the last one is inflammatory barrier. Inflammatory barrier. Inflammatory मतलब inflammation हुए. Inflammation माने क्या? ज्वलन हुए. माने करो तमरे को जगह रे खंडिया हला कि गोटे बाहर पोक बा कौन सी कीट कौन सी आर्थ्रोपोड हो कि कौन सी स्पाइडर हो बा कौन सी एनिमल हो बाइट कला और जदि कौन सी बॉडी पार्ट तुम्हारो बर्निंग जो इंजुर्ड है हाँ ताले there will be the inflammation in that person. When there is any cut in our body or any bite from any animals in our body part, any body part, or whenever your certain body parts are burnt in fire, at that situation, inflammatory barriers comes under to act as a innate barrier by innate immunity. समझ में आ गया ना कैसे बड़े माने काम आगे inflammatory during cut if certain body part is cut mistakenly or by mistakenly or any animals bite यदि कौन सी एनिमल बा एनिमल स्टिंग्स बा कौन सी आर्थ्रोपोड स्पाइडर बाइट करा तुमको और burning of any part of body so what समय रे बाइट समय रे बा हम बॉडी रे यदि कौन सी बर्निंग हैला तो सही समय रे किए काम करे ना को प्रकार इम्यूनिटी काम करे इन्फ्लेमेटरी बैरियर कोन हुए ना ज्वलन हबो पीड़ा हबो टेंपरेचर से जगह रे बढ़ी जीवो है स्वेलिंग हबो एटा माने इन्फ्लेमेटरी माने दैट इज ए रिएक्शन प्रोसेस बुझि परछ ना रिएक्शन प्रोसेस कोन में हुए देखो एई तीनटा सिचुएशन को देखो माने कट हैला बाइट हैला बा बर्निंग हैला
all these cases our body part is exposed to the outer environment. বর্তমান তো নর্মাল আছে, দেখো এই জায়গায় যদি কটি গলা এটি এই জায়গাটা কটিগলা ধর এটি সোয়েল করিব বা আমার বাহার এনভায়রনমেন্ট কু আমার বডি পার্ট ইনর বডি পার্টটা কোন হলা বর্তমান এক্সপোজ হলা বা পুড়িগলা মানে কোন আমার স্কিনটা এটি উঠি যাওয়ার আমি তো এই আমার বডির যে ইনর পার্ট রহিলা স্কিন তল যে পার্ট রহিলা এনভায়রনমেন্ট রহিলা আমার বডি সহিত এক্সপোজ হবে। সেମିତି বাইট কলা আমি সেটা পোর হব কোনসি যদি কিছু গোটে সাপ কামুলা কি কিছু বি কামুলা তো পোর হব মানে বাহারর মাইক্রো অর্গানিজমস বা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস से पोर देखि भीतर को जाई परिवार संभावना थे। सो देयर इज चांस ऑफ डायरेक्ट एंट्री ऑफ पैथोजेन्स बाय दिस प्रोसेस। जदि कट हला जदि बाइट हला बा हमर बॉडी बर्निंग इंजरी हला तो देयर इज चांस ऑफ डायरेक्ट एंट्री ऑफ microorganisms. It may be bacteria, it may be virus or any microorganism directly into our body or into our blood, clear, or into our tissue. In that situation what happens, तो ये जगह कौन है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बा पैथोजेंस है पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म enters body directly. Okay, तो ये पैथोजेन बर्तमान कौन करिवो डायरेक्टली पसिजिवो। तो ये पैथोजेन बर्तमान गोटे एंटीजेन रूपे काम करिवो है। तो एंटीजेन रूपे काम करिवो ये जाके कौन करिवो ना जो मास्ट सेल अछिंदी से मास्ट सेल को हला सब बा मास्ट सेल आसीबो मास्ट सेल सहित ए माने जाके कोन होबे बाइंड कर जिवे हला मास्ट सेल सहित बाइंड कर जिवे है। गोटे मिनिट तमे लेखो दाओ के हला। तो पैथोजेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोन फर्स्ट हला कट हला बाइट हला बर्निंग हला जाबी हला पैथोजेन कोन बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हे परे वायरस हे परे एमन कोन करले बॉडी भीतर एंट्री करले। तो एमन एंट्री करा पर कोन करिए छुआ टॉक्सिन रिलीज करिए कोन करिए रिलीज करिए टॉक्सिन। तो टॉक्सिन कोन हबो टॉक्सिन्स रिलीज्ड हला कोड करिए ना जो जगह कट हेतला जो जगह बर्निंग हेतला जो जगह बाइट हेतला से टिश्यू से जगह जो टिश्यू थिबे तो से टिश्यू रो आका पाक एरिया रे समान कोन करिवे विष छाड़िबे टॉक्सिन ताको बॉडी रो जो टॉक्सिन रिलीज होय मैं एनी प्रोटीन हे पारे सका इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो टॉक्सिन रिलीज करियो। तो ये टॉक्सिन कोन करियो जो टॉक्सिन हमरो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बा बैक्टीरिया बा पैथोजेन पाखरो रिलीज हेची जोटा हम बॉडी पे क्षति करबा। तो से टॉक्सिन कोन करियो ना टॉक्सिन जीवो हम बॉडी सेल जो मास्ट सेल अछंती हला मास्ट सेल को कौन करिवो मास्ट सेल को से माने ब्रेक डाउन करते हैं। ए टॉक्सिन कौन करिवो ना इट ब्रेक डाउन mast cell. Mast cell, what is mast cell? The cell which secrete histamine and heparin. So in this case heparin doesn't take part in any action, but when mast cell will break down also histamine will release। ब्रेक डाउन कौन पाई हला कारण जो टॉक्सिन रिलीज हेतला छुआ से टॉक्सिन मास्ट सेल को ब्रेक कर दो। तो मास्ट सेल तो ब्रेक करिवो तो सेटु कोन रिलीज होबो ना हिस्टामाइन विल आल्सो रिलीज्ड। और हिस्टामाइन HISTA histamine MINI histamine released from mast cell। समझ आएगा ना मास्ट सेल कोन होबो हिस्टामाइन रिलीज होबो। तो हिस्टामाइन कोन होबो एटा गोटे छुआ भासोडायलेटर मींस ये कोन करबो ना जो से आखा पाखरे से जो इंजर्ड टिश्यू रे जो जगह रे सब घटना घटिची कट हेची बा बाइट हेची तो से जगह रे से आखा पाख से टिश्यू रे आखा पाखरे जो ब्लड वेसल जाइतो कैपिलरी जाइतो से ताकू तार डायमीटर को डायलेट कर दो सेति में त कोंती भासोडायलेटर कारण से ब्लड वेसल लो डायमीटर को डायलेट करूची उत्सार कर दोची बा तार वाइट क्यूब इंक्रीज कर दो। तो हिस्टामाइन इज ए कौन ना भासोडायलेटर
माने से कौन करियो तार वाइड के बढ़े दो। तो जेहेतु हिस्टामाइन इज ए vasodilator and it increases the wide of blood vessel बर्तमान वाइड थिला उसार एटा कोन जो बढ़ी जो। तो जदी गुट एतिकी मोटार थिला ब्लड वेसल ना बर्तमान ये एते मोटा हेला तो से जगह रे कोन हो फांगा आइ जो। तो बाहर जगह रे सब ब्लड कोन हो फ्लो करियो आरंभ कर जो कारण सेती एनफ स्पेस अवेलेबल हेला फांका हे गेला से जगह रे ब्लड वेसल टा बा जतिकी तार थिला ब्लड मोटे से अधिक बढ़ी गेला तो आखपाख एरिया रे सब कोन हो ब्लड सब हाईली बा बहुत अमाउंट रे से माने कोन हो मूव करियो आरंभ कर जे से पार्टिकुलर जगह को। सो ब्लड flows increases बुझी पाला जो जगह रे बॉडी एच बा कट हेची से जगह रे कोन हैला ई सब घटना परे दि तीन स्टेप परे हम कोन हितला हिस्टामिन रिलीज हिता हिस्टामिन कोन गला ना से पाखर जो ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल थिला तारो डायमीटर को इंक्रीज कर देला सो दैट आखा पाखरे जो चारि एरे जो थिले बॉडी रो ब्लड वेसल सब से एरिया रो सब ब्लड स्पीड रे से जगह को मूव कला डिफरेंट थरे ए जगह रे कट हेची एठु मूव करियो पछर मूव करियो गुडर भी आसी परियो हला से जगह को आसीयो पूरा सब बड़ ब्लड आसीयो आरंभ होई जो से जगह कारण सेटा मोटा हेची ब्लड वेसल ता सेटी एना आसी परियो। तो जेहेतु ब्लड फ्लो करिवो से जगह को जो जगह रे कट हेची एक्सेस अमाउंट रे बा हाई अमाउंट रे तो से जगह रे बर्तमान कोन होबो नाइट अपीयर्स एज रेड बिकॉज़ ऑफ हाई अमाउंट ऑफ बा मोर अमाउंट ऑफ ब्लड डिपोजिशन एट दैट area. So at that area, but that injured area turns into red. हाँ नहीं तो बोला injured area जो एरिया इंजर्ड हेजला हम पड़ रहा जेहेतु से एरिया को सब ब्लड मूव करियो ब्लड काई मूव कला ना वासोडाइलेशन पाइन के कला हिस्टामिन तो से जगह रे कोन इंजर्ड एरिया टा रेड हे जिवो। आ जदी टेम्परेचर ना हमर जदी ब्लड अधिका छ अब जो जगह रे जदी हम बॉडी रा ब्लड अधिका हे जिवो बा ब्लड जो जगह जमा हबो से जगह सब टेम्परेचर रहइबो बुझि पाना माने से जगह उष्म लागो वार्म लागो तो सेही पर्टिकुलर एरिया रे टेम्परेचर मध्ये उडी जिवो। देखियो ब्लड जते अधिका स्पीड हबो त बॉडी रा टेम्परेचर अधिका हबो से समय जदि ब्लड तो बा एमिति कोइ पारे टेम्परेचर अधिका हला ब्लड फ्लो भी अधिका ऑब्वियसली हबो कारण टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड फ्लो। सो जेहेतु से जगह ब्लड रा सप्लाई अधिका हला ब्लड फ्लो अधिका होची एट दैट पोजीशन एट दैट इंजर्ड पॉइंट व्हाट विल हैपन ना द टेम्परेचर विल बी एब्सोल्युटली इंक्रीज हाँ तो से जगह कौन हम टेम्परेचर इंक्रीज हो तो बर्तमान बॉडी की से प्रोटेक्ट कर पारियो ना टेम्परेचर इंक्रीज जदी से जगह हबो तो से जगह आ के बैक्टीरिया वायरस एंट्री कर पारियो ना कारण टेम्परेचर रे से माने एग्जिस्ट कर पारियो ना सर्वाइव कर पारिबे ना है ना नहीं तो जहाँ जो माने पसी थिबे ऑलरेडी से मान को ए टेम्परेचर जो इंक्रीज हबो ताको न्यूट्रलाइज कर दबो आल्सो एट दैट पॉइंट एट दैट जो जगह रे ब्लड रा फ्लो अधिक हबो से जगह स्वेलिंग हे जिवो हला सेठी सब मोनोसाइट्स आर डिपोजिटेड एट दैट पॉइंट हला टेम्परेचर इंक्रीज हबो आ कोन हबो इंजर्ड पॉइंट रे ना मोनोसाइट्स आर डिपोजिटेड बुझ पा मोनोसाइट जो पडोतले एरा फागोसाइटिक सेल मैक्रोफेज भीतर या पूर्व स्टेप रे जो पडोतली तो से मोनोसाइट कोन करिए एमान होजंदी फागोसाइटिक सेल ये आसी बहुत लार्ज अमाउंट रे जो जगह रे कट हेतबो से जगह रे मोनोसाइट ता चारि पटरे आसी डिपोजिट हेतबो पूरा गद्दा हे जे मोनोसाइट तो आसने कोन हबो से मोनोसाइट कोन हबो जो बैक्टीरिया बा वायरस से कट जगह रे एंट्री करिथिबे परिस्थिति रो सुविधा नै की बा हमरो प्रॉब्लम रो सुविधा अपॉर्चुनिटी जो माने एंट्री करिथिबे तो से माने को मोनोसाइट कोन करिवे माने सब एनगोल कर दे हैला तो से गुटे जगह रे केते जिंस डिपोजिट होची मोनोसाइट आसी पहुंचेले ब्लड आसी की पहुंचेला से टेम्परेचर हैला ऑब्वियसली हाई ब्लड फ्लो होची मोनोसाइट्स बा ओला मैक्रोफेजेस आसी डिपोजिट होचंदी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंट्री करचंदी तो से जगह कोन हे जो स्वेलिंग हे जो ना गोटे जगह ब्लड सप्लाई होची गोटे जगह मोनोसाइट डिपोजिट होचंदी से जगह पैथोजेन भी अछंदी से जगह जो सेल जो कट हेतला के बर्निंग हेतला से जगह तार जो सेल रो सेलुलर फ्लूइड जो हम कहउचंदी पॉज जोडा पूजा बढ़िया सीक्रेट हुए खंडिया खाबरा जगह डिपोजिट हुए ना नहीं तो सेलुलर फ्लूइड जोडा कि हमर माने बैड फ्लूइड जोडा माने गोटे कोन कहबा हमर वेस्ट मटेरियल तो सेगुडा भी से जगह स्वेलिंग करे बारे हेल्प करे तो से जगह कोन हुए इंजर्ड जगह आल्सो स्वेलिंग अकर तो केमित हो जी जान पड़छ ना रिएक्ट विथ इन्फ्लेमेशन ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन व्हाट विल हैपन द inflammatory area will be turned into red
it will also swell up, the temperature at that area will increase, and the monocyte will be deposited there to neutralize, to engulf the enter microorganism. गोटे इन्फ्लेमेशन होउची माने कोन होउची छुआ ना ऑब्वियसली जो जगह रे इन्फ्लेमेशन होतबो देखो से जगहटा फुली की थिबो, से जगह रे गोटे रिएक्शन टा फुली जाइथिबो, से जगह रे रेड पड़ी जाइथिबो, से जगह रे हाथ मारिबो देखो टेम्परेचर इंक्रीज हेतिबो, बॉडी गरम लागिबो से जगहटा, आ से जगह रे सब मोनोसाइट बा मैक्रोफेजेस डिपोजिट हेते। तो एटा हम बॉडी को प्रोटेक्ट करू। तमे भाबो एटा रिएक्शन करछि तमर खराब ना छुआ, जदि कोनसी तुम इन्फ्लेमेशन होउची, कोनसी जगह पोडुची, जळुची, फुली जाइची, गरम लागुची गुटे जगह, that means that is acting against certain pathogens, that is a part of our immunity, immune system रे एटा पार्ट हला, that is good for our health। जदि इन्फ्लेमेशन न हो that will bad, समझ में आ रहा है ना, हम देह खराब होता है। So these all were the part of innate immunity, 4 types of innate immunity, but barriers are there under innate immunity: physical, physiological, cellular and inflammatory, all are completed by now. So thank you for all for today.